1947 وہ سال جس میں انسانیت شرما گئی، جب پنجاب کے کھیتوں اور دلی اور کلکتہ کی گلیوں میں مذہب کے نام پر خون بہایا گیا۔ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ اس وقت ہر ہندو اور سکھ مسلمان کا اور ہر مسلمان ہندوؤں اور سکھوں کا دشمن بنا ہوا تھا۔ نفرت کی وہ آگ تھی کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا سچ نہیں۔ اس آگ میں، نفرت کی اس آندھی میں، کچھ چراغ ایسے بھی تھے جنہوں نے طوفان کے سامنے بجھنے سے انکار کر دیا۔ کچھ ایسے ہندو بھی تھے جو مسلمانوں کے لیے ایک ڈھال بن گئے۔ آج انقلاب کی یہ کہانی ان 6 غیر معمولی ہندوؤں کی ہے جنہیں تاریخ کے شور میں بھلا دیا گیا۔ نفرتوں کے اس دور میں انہیں یاد کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے آزادی کے وقت کے اصل ہیروز کی بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے انقلاب کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ مڈ اگست 1947 پنجاب میں سرحد کے دونوں جانب لاشیں گر رہی تھیں۔ فوج بے بس تھی، لیکن ہندوستان کے دوسرے کونے پر بنگال میں ایک معجزہ ہو رہا تھا۔ وہاں بھی اتنی ہی نفرت تھی، اتنی ہی آبادی تھی، لیکن وہاں خون کی ندیاں نہیں بہہ رہی تھیں۔ کیونکہ وہاں فوج نہیں، ایک بوڑھا رہنما موجود تھا۔ 15 اگست 1947 کو جب دلی میں نہرو ترنگا لہرا رہے تھے، مہاتما گاندھی اس جشن کے ہنگاموں سے کہیں دور کلکتہ کے ایک بدنام اور خطرناک مسلم علاقے بیلی گھاٹا میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک مسلمان رہنما حسین شہید سہروردی کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ انتہا پسندوں کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ ہجوم ان کے گھر پر پتھراؤ کرتا رہا، انہیں غدار کہتا رہا، بلکہ ایک بار تو ایک نوجوان نے ان پر لاٹھی بھی اٹھا لی۔ لیکن گاندھی جی نے صرف اتنا کہا، اگر تم مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے مارو۔ ان کی ضد نے کلکتہ کے لوگوں کو شرمندہ کر دیا۔ جو ہاتھ خنجر لے کر اٹھے تھے وہ ان کے قدموں میں ہتھیار ڈالنے لگے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دی میریکل آف کیلکٹا پر 26 اگست 1947 کو گاندھی جی کو ایک خط لکھا اور وہ تاریخی جملہ کہا، پنجاب میں ہمارے پاس 55,000 سپاہی تھے، لیکن ہم فسادات کو نہیں روک پائے۔ لیکن بنگال میں ہمارا صرف ایک نہتہ بوڑھا تھا اور کوئی فسادات نہیں ہوئے۔ وہ ہماری 1 مین باؤنڈری فورس ہے۔ کلکتہ کو بچانے کے بعد گاندھی جی دلی آئے، لیکن تب تک دلی قبرستان بن چکی تھی۔ وہ 7ویں مرتبہ لٹ چکی تھی۔ یہاں مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے، مساجد پر قبضے ہو گئے، اور اسی دوران گورنمنٹ آف انڈیا نے، پرائم منسٹر جواہر لال نہرو اور ہوم منسٹر ولبھ بھائی پٹیل نے ایک سخت فیصلہ کیا۔ کیونکہ کشمیر میں پاکستان کے ساتھ جنگ شروع ہو چکی تھی، انڈین حکومت نے پاکستان کے حصے کے 55 کروڑ روپے روک لیے۔ پٹیل نے کہا، ہم یہ پیسے پاکستان کو نہیں دیں گے تاکہ وہ ہم پر ہی گولیاں نہ چلائے۔ انہیں سیاسی طور پر یہ ٹھیک فیصلہ لگتا تھا، لیکن گاندھی جی نے کہا یہ اخلاقاً غلط ہے۔ یہ پیسے پاکستان کا حق ہے۔ اگر ہم نے وعدہ کر کے پیسے روکے تو ہم بے ایمان کہلائیں گے۔ اور جب نہیں سنی گئی تو 13 جنوری 1948 کو 78 سال کے گاندھی نے اپنی زندگی کا آخری اور سب سے خطرناک داؤ کھیلا۔ انہوں نے مرن برت کا اعلان کر دیا، یعنی مرتے دم تک بھوک ہڑتال کا اعلان۔ ان کی شرط تھی، پاکستان کے 55 کروڑ روپے فوراً ادا کرو اور دلی کے مسلمانوں کو ان کے گھر میں واپس بساؤ اور مسجدیں خالی کرو۔ جب تک یہ نہیں ہوگا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ سمجھے یہ اپنی ہی حکومت کے خلاف بغاوت تھی۔ نہرو اور پٹیل بہت ناراض ہوئے، لیکن گاندھی جی اپنی بات سے ذرا بھی نہ ہٹے۔ حالت بگڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ وہ بس کچھ دن کے مہمان ہیں۔ پریشر بڑھتا گیا اور آخر انڈین گورنمنٹ نے سر جھکا لیا۔ پاکستان کو پیسے دے دیے گئے اور ہندو اور سکھ لیڈروں نے قسم کھائی کہ وہ مسلمانوں کو نہیں ماریں گے۔ گاندھی جی نے ایک بار پھر اپنی جان کو داؤ پر لگا کر بازی جیت لی۔ لیکن نفرت اگر ہار بھی جائے، مجبور ہو کر ہتھیار بھی ڈال دے تو وقت پڑنے پر بدلہ ضرور لیتی ہے۔ گاندھی جی کے اس قدم نے کٹر پنتھیوں کو پاگل کر دیا۔ وہ انہیں ہندو دھرم کا دشمن اور پاکستان کا باپ کہنے لگے، اور بھوک ہڑتال کے صرف 12 دن بعد 30 جنوری 1948 کو نتھو رام گوڈسے نے انہیں گولیاں مار کر قتل کر دیا۔
गोडसे ने अदालत में कहा था, मैंने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि वो मुसलमानों के लिए बहुत नरम गोशा रखते थे और पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलवाकर उन्होंने भारत के साथ गद्दारी की। जी हाँ, एक हिंदू महात्मा एक हिंदू के हाथों मारा गया क्योंकि वो मुसलमानों का मुहाफिज था। ये 1947 के लिए दी गई सबसे बड़ी कुर्बानी थी। तभी मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, ये सबसे बुज़दिलाना हमला था। गांधी जी हिंदू बिरादरी के अजीम तरीन लोगों में से एक थे, लेकिन गांधी जी अकेले नहीं थे। उनके साए में कुछ और चिराग भी जल रहे थे। कुछ ऐसे लोग जो लीडर नहीं थे, जो महात्मा नहीं थे, लेकिन गलियों मोहल्लों में मौत के सामने खड़े होकर इंसानियत का परचम जरूर उठाए हुए थे। ये कहीं ज्यादा खतरनाक काम था, क्योंकि गांधी जी जैसी अजीम शख्सियत के लिए तो शायद पूरा इंडिया रुक सकता था, लेकिन गली मोहल्लों में जहां मौत नाच रही थी, वहां किसी महात्मा का इंतजार नहीं किया जा सकता था। वहां फसादियों के हुजूम के सामने खड़े होने के लिए जिगर चाहिए था। और हैरत की बात यह है कि ये फौलादी जिगर दिखाने वालों में सबसे आगे एक नौजवान औरत थी। उसका नाम था सुभद्रा जोशी, कांग्रेस की एक नौजवान और पुरजोश कारकुन और नेहरू की बहुत करीबी साथी। जब 1947 में दिल्ली की सड़कें खून से रंगीन होने लगीं, तो सुभद्रा ने एक अनोखा फैसला किया। उन्होंने शांति दल यानी पीस आर्मी के नाम से एक फोर्स बनाई। उस फोर्स का काम किसी से लड़ना नहीं, बल्कि मुसलमानों के मोहल्लों में जाकर उन्हें तहफ्फुज़ का एहसास दिलाना था। रोज रात को जब पूरा दिल्ली डर के मारे कांपता था, सुभद्रा अकेली जीप में बैठकर मुस्लिम इलाकों का गश्त करती। ये कोई आसान काम नहीं था। वो खुद भी कट्टरपंथियों के निशानों पर आ चुकी थी। एक रात दिल्ली की सब्जी मंडी के इलाके में एक बड़ी भीड़ मुसलमानों के घरों पर हमला करने बढ़ी, तो सुभद्रा उनके रास्ते में खड़ी हो गई। कट्टरपंथियों ने धमकी दी कि पीछे हट जाओ वरना मारी जाओगी, लेकिन सुभद्रा नहीं हटी। अचानक भीड़ में से किसी ने फायरिंग कर दी। एक गोली सीधी उनके बाजू पर लगी। वो खून में लथपथ होकर रह गई, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। जख्मी हालत में दोबारा खड़ी हुई और हमला करने वालों को ललकारा। उनकी इस जुर्रत ने हमलावरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उस दिन उन्होंने न सिर्फ सैकड़ों आम मुसलमानों की जान बचाई, बल्कि भारत के पहले मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस रफी अहमद कुदवाई को भी कत्ल होने से बचा लिया। यही वो वक्त था जब खुद वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू भी प्रोटोकॉल तोड़कर दिल्ली के कन्नाट पैलेस पहुंचे और एक मुसलमान जोड़े को बचाने के लिए अपनी कार से निकल पड़े और अकेले हुजूम से भिड़ गए थे। लेकिन याद रखें, नेहरू के पास तो सिक्योरिटी थी, लेकिन सुभद्रा जैसी औरतों के पास सिर्फ अपना ज़मीर और हिम्मत थी। बस दिल्ली से सैकड़ों मील दूर बिहार में तो बहुत कुछ हो रहा था और बहुत पहले से हो रहा था। 1947 में यहाँ वो कत्लेआम हुआ था जिसने समझे बंटवारे की बुनियाद रख दी थी। वहाँ के मुसलमानों का बेदर्दी से सफाया किया जा रहा था। फौज मुकम्मल तौर पर नाकाम थी। उन हालात में एक सोशलिस्ट लीडर सामने आया। नाम था जयप्रकाश नारायण, जिसे दुनिया जानती थी जेपी के नाम से। वो एक ऊंची जात के हिंदू थे, लेकिन हालात देखते हुए उन्होंने अपने ही लोगों को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। वो बिहार के सबसे खतरनाक और फसाद ज़दा इलाकों में गए। हिंदुओं के हुजूम के सामने खड़े होकर वो तारीखी अल्फाज कहे जिन्होंने लोगों को शर्म से पानी पानी कर दिया। तुम समझते हो कि तुम मुसलमानों को मारकर हिंदू धर्म की खिदमत कर रहे हो? नहीं, तुम हिंदुस्तान की रूह को कत्ल कर रहे हो। अगर तुम मुसलमानों को मारना चाहते हो तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। उन्होंने सिर्फ तकरीरें ही नहीं की, अपनी पार्टी के हिंदू सेवकों को भी हुक्म दिया कि जाकर मुसलमानों के घरों के बाहर पहरा दें। जेपी जैसे हिंदू लीडर की इस बहादुरी ने बिहार में फसादात की आग को ठंडा करने में बहुत अहम रोल प्ले किया। उस महाज पर एक तीसरा सिपाही भी था,
मगर वो मैदान जंग में नहीं, सच्चाई के महाज पर लड़ रहा था। नाम था पंडित सुंदरलाल। 1947 में दिल्ली के करीब मेवात के इलाके में हिंदू रजवाड़ों ने मेयो मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। लाखों मुसलमान पाकिस्तान की तरफ माइग्रेशन कर रहे थे। तब पंडित सुंदरलाल वहां पहुंचे और मुसलमानों के काफिलों को रोका, उनसे मुआफी मांगी और हुकूमत से लड़कर उनके लिए सिक्योरिटी की गारंटी ली। उन्होंने हजारों मुसलमानों को उनके घरों में वापस बसाया, लेकिन पंडित सुंदरलाल का सबसे बड़ा कारनामा अभी बाकी था। 1948 में जब इंडियन आर्मी ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया तो वहां से भी मुसलमानों के कत्लेआम की खबरें आने लगी। हुकूमत ने सुंदरलाल को इन्वेस्टिगेशन के लिए हैदराबाद भेजा। यहाँ पंडित जी ने, जो खुद एक हिंदू ब्राह्मण थे, अपनी कौम, अपने मजहब को नहीं बल्कि सच्चाई को चुना। उन्होंने वो मशहूर सुंदरलाल रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि इंडियन आर्मी और हिंदू कट्टरपंथियों ने हैदराबाद में 30 से 40 हजार बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम किया था। ये रिपोर्ट इतनी शर्मनाक थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसे दहाइयों के लिए दबा दिया, अवाम से मुकम्मल तौर पर छुपा दिया। पंडित सुंदरलाल को गद्दार कहा गया, लेकिन उन्होंने फिर भी मुसलमानों के खून का सौदा करने से इनकार कर दिया। अपनी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर सच बोलना, ये बड़ा बहादुरी का काम है, और ये काम एक शख्स ने भी किया। नाम था राजेश्वर दयाल। पार्टीशन के बाद फसादात सिर्फ सड़कों पर नहीं हो रहे थे, एक जंग सरकारी दफ्तरों के ठंडे कमरों में भी लड़ी जा रही थी। ये जंग थी ज़मीर और सियासत की। ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसर वही करते हैं जो हुकूमत चाहती है, लेकिन 1947 में एक हिंदू अफसर ऐसा था जिसने अपनी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर एक खौफनाक साजिश को बेनकाब किया। वो थे यूपी के होम सेक्रेटरी श्री राजेश्वर दयाल। 47 में जब पंजाब जल रहा था, यूपी में भी हालात बहुत ही खराब थे। तब राजेश्वर दयाल को मुखबिरों से खबरें मिल रही थी कि एक संगठन बड़े पैमाने पर मुसलमानों के कत्लेआम का प्लान बना रहा है। उस संगठन का नाम था RSS। राजेश्वर ने किसी हुक्म का इंतजार नहीं किया। उन्होंने खुद पुलिस फोर्स लेकर RSS के सरबरा MS गोलवालकर के गुप्त ठिकाने पर छापा मार दिया। वहां उन्हें जो मिला वो सबके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। उन्हें वहां हथियारों के जखीरे के साथ साथ पश्चिमी यूपी के डिलीटेड मैप मिले, जिसमें मुसलमानों के मोहल्लों और देहातों को लाल निशानों से मार्क किया गया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक जेनोसाइड, एक कत्लेआम का ब्लूप्रिंट था। दयाल के पास ठोस सबूत थे। वो गोलवालकर को गिरफ्तार करना चाहते थे ताकि हजारों बेगुनाहों की जान बचाई जा सके, लेकिन यहाँ सिस्टम आड़े आ गया। यूपी के वजीर आला पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने उन्हें कार्रवाई से रोक दिया। सियासी दबाव इतना ज्यादा था कि फाइल दबा दी गई और गोलवालकर को जाने दिया गया। राजेश्वर दयाल के पास खामोश रहने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने अपनी किताब ए लाइफ ऑफ आवर टाइम्स में पूरी साजिश को बेनकाब करके तारीख के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। यानी वो ऐसे अफसर थे जिन्होंने साबित किया कि वर्दी के नीचे एक इंसानी दिल भी धड़क सकता है। ये वो लोग थे जिन्होंने उस वक्त इंसानियत का दिया जलाया जब हर तरफ हैवानियत का नंगा नाच हो रहा था। ये थे वो रोशन किरदार, अजीम कैरेक्टर, जो सब अलग अलग बैकग्राउंड से थे, अलग अलग ओहदों पर थे, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी। उन सब ने भीड़ का हिस्सा बनने से इनकार किया। 1947 में जब नफरत करना सबसे आसान था और इंसानियत दिखाना सबसे मुश्किल, उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना। उनकी कहानियां हमें इंसानी साइकोलॉजी का भी बताती हैं कि नफरत पॉलिटिकल होती है, उसे बनाया जाता है, उसे भड़काया जाता है, उसे एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोहब्बत और दूसरे के दर्द को महसूस करना नेचुरल होता है। राजेश्वर दयाल को किसी ने हुक्म नहीं दिया था कि वो साजिश बेनकाब करें। ये उनके अंदर की इंसानियत थी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उन्होंने साबित किया कि इंसान अगर चाहे तो कीचड़ के बीच में रहकर भी पाक दामन रह सकता है, वहाँ कवल खिला सकता है। और हाँ, ये सब प्राउड हिंदू थे।
नथुराम गोडसे ने गांधी को मारा क्योंकि वो समझता था कि हिंदू मत को बचा रहा है, हालांकि वो नफरत को धर्म समझता था। लेकिन गांधी, जेपी और सुंदरलाल ने साबित किया कि असल धर्म किसी की जान लेना नहीं, बल्कि किसी बेगुनाह की जान बचाना है। उन्होंने मुसलमानों को बचाकर सिर्फ इंसानियत की खिदमत नहीं की, उन्होंने खुद अपने धर्म की आत्मा को बचा लिया। उन्होंने साबित किया कि मेजॉरिटी का काम माइनॉरिटी को डराना नहीं, बल्कि उसे सीने से लगाना है। आज इतने बरसों बाद जब हमारे आसपास नफरत दोबारा सर उठा रही है, जब धर्म के नाम पर लोगों को अलग अलग खानों में बांटा जा रहा है, दरार को गहरा किया जा रहा है, तो हमें ऐसे गुमनाम हीरोज की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि नफरत करना आज भी बहुत आसान है, गाली देना बहुत आसान है, लेकिन नफरत के तूफान के बीच में खड़े होकर मोहब्बत की बात करने के लिए गांधी जी जैसा जिगर और सुभद्रा जी जैसी हिम्मत चाहिए। वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इनकलाब से जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग इनकलाब इंटरनेशनल।